Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we are going to discuss about the allowances under the head salary, theory and practical notes with the examples. So guys, if you are like my channel, if you find the videos are useful, so kindly subscribe and share this channel for the further updates. Next one, allowances. Allowances is what? These are the benefit which are given in the cash by the employer, 100% in cash. पूरा ही कैश में होगा. एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को टू मीट सम देयर डेली लाइफ पर्पसेस रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट और समटाइम इट इज नॉट रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट. So they are divided in three categories: fully taxable, fully exempt, partially taxable and partially exempt. First one is the fully taxable. These are the list of fully taxable allowances and you have to recall all the allowances when you are solving the practical. So you have to learn the list of these allowances. सबसे पहले है DNS allowance, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको टिपिकल हिंदी में. DNS allowance to meet the rising cost of living. City compensatory allowance. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दिस इज जस्ट टू कंपनसेट दी स्पेशल सिटी. जिस सिटी में पोस्टेड है, सम टाइम इट हैपन, सम सिटीज आर कॉस्टलियर, सम सिटीज आर रीजनेबल, तो कॉस्ट को मीटअप करने के लिए होता है. टिफिन लंच अलाउंस है सिंपल. इंटरिम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस एक्स्ट्रा करने के लिए. नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है. जो वार्डन होते हैं स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, उनके लिए मिलता है. फैमिली अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, fixed medical allowance, telephone mobile allowance or deputation allowance. So these are the fully taxable allowances. Next one is the allowances exempt. उस list allowance to exempt maximum जो allowances जो exempt होंगे वो government employees के होंगे. Allowances to the government employees serving abroad, foreign allowance to UNO employees, allowances paid to judges of High Court, Supreme Court, sumptuary allowance to judges. This is just to entertain the visitor on the behalf of the state given to the judges, so that's why it is exempted. Allowances received by the MPs, MLAs, compensatory allowances for serving in the difficult areas under notifications. So you will find that the exempt allowances are only those which are given to the government employees. तो अगर government employee का केस आ रहा है, UNO का है, judges का है, तो that allowances will be almost exempt and this will also remain exempt in the new tax regime also, no change. नेक्स्ट इज द पार्शियल टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जाम्प्ट. लिस्ट में सबसे पहला नाम है हाउस रेंट अलाउंस का एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आएगा अलाउंस का तो ये पक्का आएगा ही आएगा. हाउस रेंट अलाउंस होता है अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रह रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो वो उस चीज के लिए ये दिया जाता है. चाहे एम्प्लॉय रेंट पे ना भी रह रहा हो फिर भी ये दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस. सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A और रूल 2A के अंडर कवर होता है. एग्जाम कैसे है ये? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन 3 लिमिट्स में से जो लीस्ट होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा. एक्सेस विल बी टैक्सेबल. लिमिट्स है actual HRA receipt, first limit. Next one is the 50% of salary in case of metro cities, 40% in case of non metro cities. अगर एम्प्लॉय जो है मेट्रो में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, नॉन मेट्रो के लिए 40% लेना है. थर्ड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दी सैलरी. ब्रैकेट में है 0.1 बिकॉज सैलरी हर जगह पे जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑफ 12%, 10% of salary, so that salary is having a different purpose, different meaning. तो here 0.1 salary का मतलब क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस DA if enters का मतलब होता है that is considered for calculating the retirement benefits. बेसिक प्लस DA if enter प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. ओनली टर्नओवर वाली कमीशन लेनी है, प्रॉफिट वाली कमीशन इसमें हमने नहीं लेनी है. एंड इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस नॉट पेइंग द रेंट, अपने घर में रह रहा है, रेंट नहीं पे कर रहा है, नथिंग इज एग्जाम फुली taxable. HRA will be fully taxable. So again I have told you the HRA जो है वो एम्प्लॉय को रेंट को बियर करने के लिए दिया जाता है. अगर एम्प्लॉय रेंट पे नहीं रह रहा है तो पूरे का पूरा HRA taxable होगा. This exemption is waived off, has been deleted under the new tax regime. So if it is new tax regime, if the employee is opting for the new tax regime, then no deduction, चाहे वो rented house में रह रहा है. Next one is the allowances taxable under section 10 subsection 14 subsection 2. These are allowances which are given for the sometime personal expenditure to meet up the expenditure of the difficult area. So these allowances are exempted on per month basis.
पर मंथ बेसिस पे एग्जाम्प्ट होते हैं ये, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एजुकेशन को मीट करने के लिए एम्प्लॉय की, तो 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है, जितना मर्जी मिले एग्जाम्प्ट इतना होना है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 किड्स। हॉस्टल एक्सपेंडिचर ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 किड्स, बाकी का टैक्सेबल रहेगा। बाकी की अगर आप अलाउंसेस की लिस्ट को देखते हैं तो ट्राइबल एरिया है, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया है, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया अलाउंस है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, अंडरग्राउंड स्पेशल कंपनसेटरी क्लाइमेट अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल एरिया अलाउंस। These are the allowances if the employee is posted on some difficult area, remote या तो पिछड़ा हुआ एरिया, हिली बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है जहाँ पे जो लिविंग है दैट इज़ नॉट वेरी इजी। इंसर्जेंसी अलाउंस है, इंसर्जेंसी है जो आर्म्ड फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, उन जगह के ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट है, दे आर पुटिंग देयर लाइफ इन द रिस्क, तो उसके लिए उनको मिलता है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस माइंस के वर्कर्स को, माइंस के एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, बिकॉज वो भी रिस्की है। सो वॉट एवर बी द नेम, तो दीज अलाउंसेस आर जस्ट टू मीट द रिस्क ऑफ द प्लेसेस वेयर द एम्प्लॉय इज पोस्टेड। तो वो रिस्की एरियाज है, डिफिकल्ट एरिया है, समहाउ लाइफ इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एरियाज, तो उसके लिए ये अलाउंस दिए जाते हैं। ये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट होते हैं, इतने एग्जाम्प्ट होते हैं, बाकी के एक्सेस वाले जो है टैक्सेबल, अगर इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो एक्सेस वाले टैक्सेबल होते हैं। पर ये सारा काम जो ताम झाम में इतना सारा हमने चार्ट किया है, दिस विल नॉट अप्लाई इन केस एम्प्लॉय ऑफ फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स है तो ये लगेगा, न्यू टैक्स रिजाइम है तो ये नहीं लगेगा। Next is the allowances exempt under section 10, subsection 14, subsection 1. These allowances are exempt. These allowances are given for performing the official duties. These are related with the official duties. So they are exempt on the basis of the amount spent for the official duties. ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जितना अमाउंट खर्च होगा उतना जो है अलाउंस अलाउड होगा, टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट होगा, एक्सेस का टैक्सेबल होगा। कुछ भी खर्च नहीं किया तो सारे का सारा टैक्सेबल होगा, पर्सनल के ऊपर खर्च किया है तब भी टैक्सेबल होगा। सो दैट्स व्हाई सो बेसिक कंडीशन इज दैट दीज अलाउंसेस आर गिवन फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, दैट्स व्हाई दे आर एग्जम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट एग्जाम्प्ट spent on the official purpose. Uniform allowance है एग्जाम एक्चुअली स्पेंट ऑन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक्सेस पर्सनल यूजेस होगी तो टैक्सेबल हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, सेल्स वगैरह को मिलता है सेल्स पर्सन को, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस है, कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो सारे के सारे सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एग्जाम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल रहेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले पीछे वाली लिस्ट में था, फिर अभी इस वाली लिस्ट में आ गया है, पहले पर मंथ एग्जाम्प्ट होता था, 2018 के बाद खत्म कर दिया गया। बट इफ एम्प्लॉइज हैंडीकैप, अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है उसको 3200 पर मंथ के हिसाब से एग्जम्पशन अभी भी मिलती है, अदरवाइज ये अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे एग्जाम्प्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, रेलवे एयरलाइन या रोड वाले हैं, उनको मिल रहा है तो 70% ऑफ एक्चुअल और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर वो एग्जाम्प्ट रहेगा, एक्सेस विल बी टैक्सेबल। और बर्डन ऑफ प्रूफ की इसकी यूजेस ऑफिशियल पर्पस के लिए हुई है, दैट इज ऑन द एम्प्लॉय, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज किया है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कुछ खर्च नहीं किया हुआ, क्या खर्चा है, तो वी विल एज्यूम नथिंग हैज बीन स्पेंट, द अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। नाउ कम द न्यू प्रोविजंस, न्यू टैक्स रिजाइम आ गया है, अब इतना कुछ कर लिया है। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है, नो एग्जाम्पशन ऑफ अलाउंसेस अवेलेबल एक्सेप्ट traveling, daily, academic, conveyance allowance that is also even on the basis of reimbursement of bills. Now understand this provision. न्यू टैक्स डिजाइन कहता है कि अगर एक एम्प्लॉई कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए ये खर्च कर रहा है, डेली है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग बहुत हो रही है उसकी बिकॉज ऑफ द जॉब, कन्वेंस है, एकेडमिक्स या रिसर्च है, तो ये वाले अलाउंस उसको तभी एग्जाम्प्ट होंगे जब वो बिल्स क्लियर करा रहा है। बिल्स है, उसने एक्चुअल में खर्च किया और एम्प्लॉयर ने उसको रीएम्बर्समेंट करी, तो ये रूल आ गया कि अगर फिक्स्ड मंथ पे बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब कि अगर जो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, पर मंथ मिल रहा है, इवन एम्प्लॉय इज स्पेंडिंग ऑन द ऑफिशियल पर्पस, बट इवन देन दैट इज टैक्सेबल। द प्रोविजन इज व्हाट, रीएम्बर्समेंट ऑफ बिल्स होंगी तो एग्जाम करेंगे, बिकॉज सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये मान लिया, लीगल लॉ में ये हो गया
कि अगर रीएम्बर्समेंट ऑफ बिल हो रहा है तो वो प्रूफ है कि एक्चुअली वो एक्सपेंड हुआ है ऑफिशियल ड्यूटीज पे। तो हमने ब्लैंकेट रेट वाली जो डिडक्शन नहीं देनी कि पर मंथ मिल रहा है इतना खर्च हो रहा है। सो इफ एम्प्लॉइज फाइलिंग द बिल्स दैट ही हैज एक्चुअली स्पेंट ऑन द ऑफिशियल ड्यूटीज, तो प्रूफ हो गया। सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए कि रीएम्बर्समेंट हुई है और ये प्योरली और प्योरली ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ही खर्च किए गए हैं। ओनली देन इट इज अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। बाकी के सारे अलाउंस डिसअलाउड हो चुके हैं, वो फुली टैक्सेबल रहेंगे। सो इट्स वेरी इजी कि अगर न्यू टैक्स रिजाइम है तो सब कुछ ही टैक्सेबल है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, बस ये 3 अलाउंस देने। इसमें भी यही देखना है अगर रीइंबर्समेंट ऑफ बिल्स हो रही है बाय द एम्प्लॉयर, प्रूफ सबमिट हो रहा है along with the return, only then that is allowed. This is the example. Different type of allowances are there. Basic salary 50,000 है, DNS allowance enter लिखा हुआ है 10,000 है, हम कह सकते हैं 20% ऑफ सैलरी। अगर यहाँ पे लिखा होता 20% ऑफ सैलरी है तो 50,000 का 20% 10,000। HRA है, रेंट पेड डेली 22,000 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 400 पर मंथ फॉर 3 किड्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 per month for 3 kids, uniform allowance, fixed medical allowance and special allowance. Let's solve it. I have solved it as per the old tax regime, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में तो कुछ सोल्व करने वाला होगा ही, सारा ही टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी आ गई, डीए एंटर फुली टैक्सेबल है, चाहे एंटर करे चाहे ना करे। वन मोर पॉइंट, डीए अगर लिखा हुआ है एंटर्स तो वो टैक्सेबल है, अगर लिखा हुआ है डीए कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो एंटर नहीं करता तब भी वो टैक्सेबल है। बस वो पॉइंट 1 की सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट 1 की सैलरी में हमने करना है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ एंटर्स, तो वहां पे नहीं आएगा, अदरवाइज वो फुली टैक्सेबल है। डीए इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस, चाहे एंटर करे चाहे एंटर ना करे। सो एचआरए पार्शली टैक्सेबल पार्शली एग्जाम्प्ट है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जाम्प्ट। पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल एचआरए विच इज 20,000। सेकंड थी 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि दिल्ली में रह रहा है तो दैट इज मेट्रो सिटी 50% ऑफ सैलरी 50,000 प्लस 10,000, क्योंकि डीए एंटर करता है। कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं थी गिवन तो हमने सिर्फ ये दोनों ले लिए, 60,000 का 50% 30,000। एक्चुअल रेंट वो 22,000 पे कर रहा है, 10% ऑफ सैलरी 6,000 तो कम 16,000। लीस्ट क्या आ गया इनमें से, 20 30 16 में से 16 इज लीस्ट, तो 16 इज अलाउड। HRA मिल कितना रहा है 20,000, 20,000 माइनस 16,000 इज एग्जाम, 4,000 इज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000, कन्वेंस 8,000, कुछ नहीं बताया हुआ कितना खर्च हुआ, तो कुछ नहीं बताया, फुली टैक्सेबल। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 400 फॉर 3 किड्स इंटू 12 14,400, एग्जाम है 300 मैक्सिमम फॉर 2 किड्स इंटू 12 7,200, एक्सेस इज टैक्सेबल। सिमिलर केस विद द एजुकेशन अलाउंस, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 300 पर मंथ, एग्जाम है 100 रुपीज मैक्सिमम फॉर 2 किड्स फॉर 12 मंथ्स। यूनिफॉर्म अलाउंस फुली टैक्सेबल, कुछ बताया ही नहीं कितना खर्च हुआ है। मेडिकल अलाउंस वैसे ही फुली टैक्सेबल है, स्पेशल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है, तो ये सारे टैक्सेबल हो गए। और अगर ये होता न्यू टैक्स रिजाइम, इफ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, तो सब कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं करना हमने, सारा ही फुली टैक्सेबल है। हॉस्टल एजुकेशन HRA वो पूरे का पूरा 20,000 टैक्सेबल होना था। So thank you for watching and listening, and if you like this, if you find it useful, so kindly like, share and subscribe my channel. For more tax concepts, question and comment section, you can leave the question in the comment section. Thank you everyone, take care. Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we are going to discuss about the allowances under the head salary, theory and practical notes with the examples. So guys, if you are like my channel, if you find the videos are useful, so kindly subscribe and share this channel for the further updates. Next one, allowances. Allowances is what? These are the benefits which are given in the cash by the employer, 100% in cash. पूरा ही कैश में होगा, एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को टू मीट सम देयर डेली लाइफ पर्पसेस रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट, और समटाइम इट इज नॉट रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट. So they are divided in 3 categories: fully taxable, fully exempt, partially taxable and partially exempt. First one is the fully taxable. These are the list of fully taxable allowances, and you have to recall all the allowances when you are solving the practical. So you have to learn the list of these allowances. सबसे पहले है DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको टिपिकल हिंदी में। DNS अलाउंस टू मीट द
rising cost of living. City compensatory allowance. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दिस इज जस्ट टू कंपनसेट दी स्पेशल सिटी, जिस सिटी में पोस्टेड है. सम टाइम इट हैपन, सम सिटीज आर कॉस्टलियर, सम सिटीज आर रीजनेबल, तो वो कॉस्ट को मीटअप करने के लिए होता है. टिफिन लंच अलाउंस है सिंपल. इंटरिम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस एक्स्ट्रा करने के लिए. नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है. जो वार्डन होते हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, उनके लिए मिलता है. फैमिली अलाउंस है. सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, fixed medical allowance, telephone mobile allowance और deputation allowance. So these are the fully taxable allowances. Next one is allowance is exempt. उस list allowance to exempt, maximum जो allowances जो exempt होंगे वो government employees के होंगे. Allowances to the government employees serving abroad, foreign allowance to UNO employees, allowances paid to judges of High Court, Supreme Court, sumptuary allowance to judges. This is just to entertain the visitor on the behalf of the state given to the judges, so that's why it is exempted. Allowances received by the MPs, MLAs, compensatory allowances for serving in the difficult areas under notifications. So you will find that the exempt allowances are only those which are given to the government employees. तो अगर government employee का केस आ रहा है, UNO का है, judges का है, तो that allowances will be almost exempt, and this will also remain exempt in the new tax regime also. No change. नेक्स्ट इज द पार्शियल टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जाम्प्ट. लिस्ट में सबसे पहला नाम है हाउस रेंट अलाउंस का, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आएगा अलाउंस का तो ये पक्का आएगा ही आएगा. हाउस रेंट अलाउंस होता है अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रह रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए ये दिया जाता है. चाहे एम्प्लॉय रेंट पे ना भी रह रहा हो, फिर भी ये दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस. सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A और रूल 2A के अंडर कवर होता है. एग्जाम कैसे है ये? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन 3 लिमिट्स में से जो लीस्ट होगा उतना एग्जाम होगा. एक्सेस विल बी टैक्सेबल. लिमिट्स है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, फर्स्ट लिमिट. नेक्स्ट वन इज दी 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज. अगर एम्प्लॉय जो है मेट्रो में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, नॉन मेट्रो के लिए 40% लेना है. थर्ड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दी सैलरी. ब्रैकेट में है 0.1, बिकॉज सैलरी हर जगह पे जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑफ 12%, 10% ऑफ सैलरी, तो दैट सैलरी इज हैविंग अ डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट मीनिंग. तो हेयर 0.1 सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस DA इफ एंटर्स. एंटर्स का मतलब होता है दैट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग दी रिटायरमेंट बेनिफिट्स. बेसिक प्लस DA इफ एंटर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. ओनली टर्नओवर वाली कमीशन लेनी है, प्रॉफिट वाली कमीशन इसमें हमने नहीं लेनी है. एंड इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस नॉट पेइंग द रेंट, अपने घर में रह रहा है, रेंट नहीं पे कर रहा है, नथिंग इज एग्जाम fully taxable. HRA will be fully taxable. So again I have told you the HRA जो है वो एम्प्लॉय को रेंट को बियर करने के लिए दिया जाता है. अगर एम्प्लॉय रेंट पे नहीं रह रहा है तो पूरे का पूरा HRA taxable होगा. This exemption is waived off, has been deleted under the new tax regime. So if it is new tax regime, if the employee is opting for the new tax regime, then no deduction, चाहे वो rented house में रह रहा है. Next one is the allowances taxable under section 10 subsection 14 subsection 2. These are allowances which are given for the sometime personal expenditure to meet up the expenditure of the difficult area. So these allowances are exempted on per month basis. पर मंथ बेसिस पे एग्जाम्प्ट होते हैं ये. लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एजुकेशन को मीट करने के लिए एम्प्लॉय की, तो 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है. जितना मर्जी मिले, एग्जाम्प्ट इतना होना है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 किड्स. हॉस्टल एक्सपेंडिचर ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 किड्स. बाकी का टैक्सेबल रहेगा. बाकी की अगर आप अलाउंसेस की लिस्ट को देखते हैं तो ट्राइबल एरिया है, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया है, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया अलाउंस है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, अंडरग्राउंड स्पेशल कंपनसेटरी, क्लाइमेट अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल एरिया अलाउंस. These are the allowances if the employee is posted on some difficult area, remote या तो पिछड़ा हुआ एरिया, हिली बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, जहाँ पे जो लिविंग है दैट इज़ नॉट वेरी ईजी,
इंसर्जेंसी अलाउंस है, इंसर्जेंसी है जो आर्म्ड फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, उन जगह के ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं कि वो डिफ़िकल्ट है, दे आर पुटिंग देयर लाइफ इन द रिस्क, तो उसके लिए उनको मिलता है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस माइंस के वर्कर्स को, माइंस के एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, बिकॉज वो भी रिस्की है। सो वॉट एवर बी द नेम, तो दीज अलाउंसेस आर जस्ट टू मीट दी रिस्क ऑफ द प्लेसेस वेयर द एम्प्लॉय इज पोस्टेड। तो वो रिस्की एरियाज है, डिफ़िकल्ट एरिया है, समहाउ लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एरियाज, तो उसके लिए ये अलाउंस दिए जाते हैं। ये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट होते हैं, इतने एग्जाम्प्ट होते हैं, बाकी के एक्सेस वाले जो है टैक्सेबल, अगर इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो एक्सेस वाले टैक्सेबल होते हैं। पर ये सारा काम था जो काम जहाँ में इतना सारा हमने चार्ट किया है, दिस विल नॉट अप्लाई इन केस एम्प्लॉय ऑफ फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स है तो ये लगेगा, न्यू टैक्स रिजाइम है तो ये नहीं लगेगा। Next is the allowances exempt under section 10, subsection 14, subsection 1. These allowances are exempt. These allowances, basically these allowances are given for performing the official duties. These are related with the official duties. So they are exempt on the basis of the amount spent for the official duties. ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जितना अमाउंट खर्च होगा उतना जो है अलाउंस अलाउड होगा, टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट होगा, एक्सेस का टैक्सेबल होगा। कुछ भी खर्च नहीं किया तो सारे का सारा टैक्सेबल होगा, पर्सनल के ऊपर खर्च किया है तब भी टैक्सेबल होगा। सो दैट्स व्हाई सो बेसिक कंडीशन इज दैट दीज अलाउंसेस आर गिवन फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, दैट्स व्हाई दे आर एग्जम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट एग्जाम्प्ट spent on the official purpose. Uniform allowance है एग्जाम एक्चुअली स्पेंट ऑन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक्सेस पर्सनल यूजेस होगी तो टैक्सेबल हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, सेल्स वगैरह को मिलता है सेल्स पर्सन को, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस है, कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो सारे के सारे सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एग्जाम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल रहेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले पीछे वाली लिस्ट में था, फिर अभी इस वाली लिस्ट में आ गया है। पहले पर मंथ एग्जाम्प्ट होता था, 2018 के बाद खत्म कर दिया गया। बट इफ एम्प्लॉइज हैंडीकैप, अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है उसको 3200 पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन अभी भी मिलती है, अदरवाइज ये अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे एग्जाम्प्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं, रेलवे एयरलाइन रोड वाले हैं, उनको मिल रहा है तो 70% ऑफ एक्चुअल और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर वो एग्जाम्प्ट रहेगा, एक्सेस विल बी टैक्सेबल। और बर्डन ऑफ प्रूफ की इसकी यूजेस ऑफिशियल पर्पस के लिए हुई है, दैट इज ऑन द एम्प्लॉय, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज किया है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कुछ खर्च नहीं किया हुआ, क्या खर्चा है, तो वी विल एज्यूम नथिंग हैज बीन स्पेंट, द अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। नाउ कम द न्यू प्रोविजंस, न्यू टैक्स रिजाइम आ गया है। अब इतना कुछ कर लिया है, न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है, नो एग्जाम्पशन ऑफ अलाउंसेस अवेलेबल एक्सेप्ट traveling, daily, academic, conveyance allowance that is also even on the basis of reimbursement of bills. Now understand this provision. न्यू टैक्स डिजाइन कहता है कि अगर एक एम्प्लॉई कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए ये खर्च कर रहा है, डेली है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग बहुत हो रही है उसकी बिकॉज ऑफ द जॉब, कन्वेंस है, एकेडमिक्स या रिसर्च है, तो ये वाले अलाउंस उसको तभी एग्जाम्प्ट होंगे जब वो बिल्स क्लियर करा रहा है। बिल्स है, उसने एक्चुअल में खर्च किया और एम्प्लॉयर ने उसको रीएम्बर्समेंट करी, तो ये रूल आ गया कि अगर फिक्स्ड मंथ पे बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब कि अगर जो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, पर मंथ मिल रहा है, even employee is spending on the official purpose, but even then that is taxable. The provision is what, reimbursement of bills होंगी तो exempt करेंगे, because सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये मान लिया, लीगल लॉ में ये हो गया कि अगर रीएम्बर्समेंट ऑफ बिल हो रहा है तो वो प्रूफ है कि एक्चुअली वो एक्सपेंड हुआ है ऑफिशियल ड्यूटीज पे, तो हमने ब्लैंकेट रेट वाली जो डिडक्शन नहीं देनी कि पर मंथ मिल रहा है इतना खर्च हो रहा है। सो इफ एम्प्लॉइज फाइलिंग द बिल्स दैट ही हैज एक्चुअली स्पेंट ऑन द ऑफिशियल ड्यूटीज, तो प्रूफ हो गया, सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए कि रीएम्बर्समेंट हुई है और ये प्योरली और प्योरली ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ही खर्च किए गए हैं, ओनली देन इट इज अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। बाकी के सारे अलाउंस डिसअलाउड हो चुके हैं, वो फुली टैक्सेबल रहेंगे। सो इट्स वेरी इजी कि अगर न्यू टैक्स रिजाइम है तो सब कुछ ही टैक्सेबल है, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, बस ये 3 अलाउंस देने। इसमें भी यही देखना है, अगर रीइंबर्समेंट ऑफ बिल्स हो रही है बाय द एम्प्लॉयर, प्रूफ सबमिट हो रहा है अलॉन्ग विद द रिटर्न, ओनली देन दैट इज अलाउड। This is the example.
डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस आर देयर। बेसिक सैलरी 50,000 है, डीएनएस अलाउंस एंटर लिखा हुआ है 10,000 है, हम कह सकते हैं 20% ऑफ सैलरी। अगर यहाँ पे लिखा होता 20% ऑफ सैलरी है तो 50,000 का 20% 10,000। HRA है, रेंट पेड डेली 22,000 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 400 पर मंथ फॉर 3 किड्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ फॉर 3 kids, uniform allowance, fixed medical allowance and special allowance. Let's solve it. I have solved it as per the old tax regime, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में तो कोई सोल्व करने वाला होगा ही, सारा ही टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी आ गई, डीए एंटर फुली टैक्सेबल है, चाहे एंटर करे चाहे ना करे। वन मोर पॉइंट, डीए अगर लिखा हुआ है एंटर्स तो वो टैक्सेबल है, अगर लिखा हुआ है डीए कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो एंटर नहीं करता तब भी वो टैक्सेबल है। बस वो .1 की सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि .1 की सैलरी में हमने करना है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ एंटर्स, तो वहां पे नहीं आएगा, अदरवाइज वो फुली टैक्सेबल है। डीए इज अ फुली टैक्सेबल अलॉयंस, चाहे एंटर करे चाहे एंटर ना करे। सो HRA पार्शली टैक्सेबल पार्शली एग्जाम्प्ट है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जाम। पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल HRA विच इज 20,000। सेकंड थी 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि दिल्ली में रह रहा है तो दैट इज मेट्रो सिटी 50% ऑफ सैलरी 50,000 प्लस 10,000, क्योंकि डीए एंटर करता है। कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं थी गिवन तो हमने सिर्फ ये दोनों ले लिए। 60,000 का 50% 30,000। एक्चुअल रेंट वो 22,000 पे कर रहा है, 10% ऑफ सैलरी 6,000 तो कम 16,000। लीस्ट क्या आ गया इनमें से, 20 30 16 में से 16 इज लीस्ट, तो 16 इज अलाउड। HRA मिल कितना रहा है 20,000, 20,000 माइनस 16,000 इज एग्जाम, 4,000 इज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000, कन्वेंस 8,000, कुछ नहीं बताया हुआ कितना खर्च हुआ तो कुछ नहीं बताया, फुली टैक्सेबल। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 400 फॉर 3 kids इंटू 12 14,400, एग्जाम्प्ट है 300, मैक्सिमम फॉर 2 kids इंटू 12 7,200, एक्सेस इज टैक्सेबल। सिमिलर केस विद एजुकेशन अलाउंस, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 300 पर मंथ, एग्जाम्प्ट है 100 रुपीज, मैक्सिमम फॉर 2 kids फॉर 12 months। यूनिफॉर्म अलाउंस फुली टैक्सेबल, कुछ बताया ही नहीं कितना खर्च हुआ है। मेडिकल अलाउंस वैसे ही फुली टैक्सेबल है, स्पेशल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है, तो ये सारे टैक्सेबल हो गए। और अगर ये होता न्यू टैक्स रिजाइम, इफ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, तो सब कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं करना हमने, सारा ही फुली टैक्सेबल है। हॉस्टल, एजुकेशन, HRA वो पूरे का पूरा 20,000 टैक्सेबल होना था। So thank you for watching and listening, and if you like this, if you find it useful, so kindly like, share and subscribe my channel. For more tax concepts, question and comment section, you can leave the question in the comment section. Thank you everyone, take care.